Okay, so good evening, Siddharth sir, Professor Dr. Alok Kumar Yadav sir, and everyone present here. My name is Sarthak Shrivastava, and I'm truly grateful and delighted to be here today, moderating this important session. We are privileged to have with us Advocate Siddharth Shankar Dubey sir, who has graciously accepted our invitation to deliver a lecture on the theme Redefining Justice Delivery, the Mediation Act 2023. This topic holds special significance as the Pro Bono Club is continuing its guest lecture series on alternative dispute resolution mechanisms. Through this series, we seek to promote and facilitate the objectives of the Pro Bono Club scheme, under which our club is entrusted with advancing awareness and practice of ADIA among law students, young advocates, and the society at large. The standard operating procedure of the pro bono clubs throughout India duty bounds them to promote ADR mechanism by conducting enriching lectures, seminars, training sessions, and competitions. I'll quickly brief everybody about the Pro Bono Club. So, the Pro Bono Club, established in 2023 at the Faculty of Law, University of Lucknow, functions under the aegis of the Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India. The club strives to promote and facilitate the Nyaya scheme in India. Its core mission is to encourage law students, lawyers, and law firms to contribute their skills towards pro bono work, ensuring greater access to justice for marginalized and underprivileged sections of the society. Now, I request our faculty in charge, Professor Dr. Alok Kumar Yadav sir, to enlighten us with his words of wisdom. Sir, please. Thank you, Sarthak. Good evening to all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, good evening. Good evening. And as Sarthak mentioned that the very object of this Pro Bono Club is to conduct various different type of programs in which one of them is to focus, and the main focus is on mediation, means ADR. So, in the furtherance to achieve that object, this program is being organized today. So, in this program, I welcome you all. I welcome our esteemed guest, Mr. Siddharth Shankar Dubey, who is a state law officer and a pro bono advocate, finally advocate. So, it is with great pleasure and we gather today to explore the transformative landscape of dispute resolution through our guest lecture on redefining Justice Delivery Mediation Act 2023. So, on behalf of Pro Bono Club, Faculty of Law, University of Lucknow, I extend a warm welcome to our esteemed speaker who will share his expertise and insights, undoubtedly enrich our understanding of this new Act, Mediation Act 2023. So, our speaker will focus on what was the necessity to create a new law and how it will be beneficial for resolving the dispute mechanism to ADR. So once again, I welcome you all for this wonderful and informative session. And definitely, we will in future we will organize in offline mode as well. But through online, we will try to continue this lecture series for you, and it will be very beneficial for you, of course. So, welcome you all once again. Thank you so much, sir. So today's lecture is centered on the theme Redefining Justice Delivery, the Mediation Act 2023. This session aims to provide valuable insights into the alternative dispute resolution mechanism with a special focus on the Mediation Act 2023. As we know, mediation is fast emerging as a vital tool
in resolving disputes amicably, and mastering this skill is indispensable for aspiring legal professionals in today's dynamic legal landscape. We are indeed honored to have with us today Mr. Siddharth Shankar Dubey sir, an accredited civil and commercial arbitrator and a practicing advocate at the High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow bench since 2017. Sir has also been an active member of the Alumni Nyaya Bandhu panel and holds an impressive professional journey. Some of his accomplishments include being a standing counsel at UPSC and the Election Commission since August 2025, government advocate at the Army Welfare Housing Organization, founder advisor of the Adhyayan Foundation for Policy and Research, and he's also the former advisory board member at Think India. His expertise has also been recognized in reputed platforms such as the Daily Guardian and Bar and Bench, where he has been featured for his insightful interpretation of critical legislations. With such a remarkable career and immense contributions to the field of law, Sir stands as a beacon of knowledge in the realm of dispute resolution practices. So, without any further delay, let us extend a very warm welcome to our esteemed speaker, Mr. Siddharth Shankar Dubey, sir. Sir, the platform is now yours. Thank you, Sarthak. I hope I'm audible. Yes, sir. Sarthak, that was a wonderful moderation. So all my best wishes primarily for that. And starting the session, Honorable Chair, Dr. Yadav sir, my friends, partner representatives from SCC Times, and the partner Ministry of Law and Justice. So, friends, when we gather here to explore and dwell on the issue of Mediation Act, particularly 2023, so we need to understand the basic tenets behind the legislative intent for the enactment of the Mediation Act of 2023. Now, those legislative intents can be multiple, but before that, we need to understand that mediation is a micro part of a macro concept. Now, the macro concept is called ADR. Many of you learned friends might be acquainted with the terminology of alternative dispute resolution. But for those, जिनके लिए जो संभवतः, I hope there is no language barrier, Sarthak. We can be comfortable in any language. It will be a mix Hindi English. Yeah, of course. आजकल तो अभी क्या है कि it is in vogue also कि अपनी मातृभाषा में बोलना चाहिए. It is widely being appreciated globally. Anyway, तो हमें इसका इंटेंट समझना होगा कि मीडिएशन एक्ट हमने क्यों इनैक्ट किया है और ये जो लार्जर अम्ब्रेला है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, ये क्या है और मीडिएशन उसका माइक्रो पार्ट कैसे है और उसकी अपनी एक वर्टिकल क्या है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है. अब जब हम एडीआर की बात करते हैं तो एडीआर इज बेसिकली आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन. नाउ दीज आर, ये भी तीन एलियन कॉन्सेप्ट है. आप लोग भी सुन रहे होंगे साहब आर्बिट्रेशन कहाँ से आ गया, ये व्हाट इज दिस कंसिलिएशन. अभी तक तो मुकदमे की बात हो रही थी, कोर्ट कचहरी की बात हो रही थी, लिटिगेशन की बात हो रही थी. व्हाट इज दिस? सो फॉर माय फ्रेंड्स, आर्बिट्रेशन is generally somewhat adjudicating the matter outside the court. Now, there's a peculiar terminology we must be aware about. It is an adjudication process. It is not a settlement. It is not a amicable resolution of a dispute. No, it is not. It is the adjudication of a dispute done by parties outside the realm of the court. पहली बात तो आर्बिट्रेशन पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी आदत भी है, मैं किसी विषय को पकड़ता हूं तो आई गो बियॉन्ड, चल कंटेन माई सेल्फ. आप लोगों को भी लगे कि मैं डाइवर्ज हो रहा हूं इशू से तो प्लीज लेट मी नो समथिंग. अब हम सेकंड एस्पेक्ट पे आते हैं कि व्हाट इज कंसिलिएशन. कंसिलिएशन इज एनीथिंग वेयर अ कंसिलिएटर, अ इंस्टीट्यूशनल कंसिलिएटर सिट्स एंड amicably advises the parties or suggests the parties in a direction to reach a resolution of a problem or a dispute and settle their issues at hand. So this is conciliation. Now,
conciliation is not adjudication. This is an important aspect all of us must know. Also, conciliation is always has to be institutional. Non-institutional conciliation is not possible. It is not provided anywhere. Whereas non-institutional arbitration is acceptable. होता भी है, जैसे आप में से कईयों ने सुना होगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन हैदराबाद, Center for Arbitration Mumbai, Singapore International Arbitration Center. So all of these arbitration centers are basically the institutions of arbitration. Now, they govern the rules, they frame the guidelines as to how arbitration proceedings shall be conducted. But with regards to non-institutional arbitration, आप जाते हैं, आप अपना हम आजकल देखते हैं, मैं कई सारे आर्बिट्रेशंस में गया हूं, ताज में, ली मेरिडियन में, या मे भी किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ करके अपने रूल्स को और आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 को कंसिडरेशन में रखते हुए वो अपना पूरा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कंक्लूड करते हैं. सो दिस इज नॉन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. बट कंसिलिएशन में नॉन इंस्टीट्यूशनल कंसिलिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड एनीवेयर. दिस इज द सेलिएंट फीचर ऑफ कंसिलिएशन. नाउ लीविंग बोथ दीज टॉपिक्स बिहाइंड, इन दोनों को मैंने आपको इसलिए समझाया फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि जब हम मीडिएशन पे आएंगे, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो आर्बिट्रेशन, जो एलिमेंट आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में मिसिंग है, वो एलिमेंट हमें मीडिएशन में मिलता है. इट इज ओपन. नाउ टिल 2023 मीडिएशन की क्या हालात थे इन आवर कंट्री? मीडिएशन पे कोई इनैक्टमेंट नहीं था, कोई सेट रूल्स नहीं थे जो पैन इंडिया गवर्न होते हों, या कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मीडिएशन का क्लॉज प्रोवाइडेड नहीं था. ये केएल क्लासेस को ही इज यॉर्निंग, मैं बोर कर रहा हूं क्या? यू कैन ऑलवेज लेट मी नो. केएल क्लासेस, हेलो, आपका शुभ नाम? इफ यू मे अनम्यूट. केएल क्लासेस करके है आपका. एनीवे, अगर नींद आ रही हो तो हो सकता है कि आप अगर म्यूट कर देंगे. यॉर्निंग इज अ वेरी इन्फेक्शियस डिजीज. अगर आप मेरे सामने यॉर्न करेंगे तो मुझे भी यॉर्न होगा. इट इज वेरी इन्फेक्शियस. आप गूगल पे पढ़िएगा यॉर्निंग के लिए, तो एटलीस्ट कैमरा बंद कर लीजिए. आई विल बी रियली ग्रेटफुल. एनीवे, प्रोसीडिंग विद द टॉपिक. सो वेयर वाज आई? Sarthak, could you please, where was I? So you have just explained the difference and arbitration and conciliation, and now we are starting towards mediation. We are going beyond the institutional things. Exactly, you are on the history of this mediation. Yeah. So yeah, we Ji Daya Sahab, I'm taking it up. So basically, there is no specific framework provided in this regard कि मीडिएशन कैसे होगा, किनके द्वारा होगा, कौन करेगा, कैसे किया जाएगा और उनकी इन्फोर्सेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी क्या होगी. इसके ऊपर कोई फ्रेमवर्क आउटलाइन नहीं था, स्ट्रक्चर्ड नहीं था. इट वाज नॉट प्रोवाइडेड एनीवेयर. सो अभी तक हम कैसे कर रहे थे मीडिएशन? आप कह रहे हैं कि साहब मीडिएशन अब तक तो चल ही रहा था. ऐसी बात तो है नहीं. तमाम पारिवारिक विवाद हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, उनमें मीडिएशन को रेफर किया ही जाता है. जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है. ओवर द टाइम जैसे प्रेसिडेंट्स होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, एंड वी अज्यूम देम एज लॉज, वी फॉलो देम एज लॉज एंड अ वाइडर जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ, वैसे ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गॉट इवॉल्व्ड, इट गॉट इम्प्रूव्ड विद ईच पासिंग जजमेंट, और noticing the lacunas in the system, the loopholes they recognize करने के बाद, identify करने के बाद उसको address किया गया in the most feasible manner by the judicial institutions only. There was no specific framework laid down by the legislative institution in this regard. It was all taken up at the behest of the judicial institutions, whether it was the Supreme Court or the Delhi High Court and things like that. So अब से पहले आर्बिट्रेशन कैसे, मीडिएशन कैसे होता था? माफ कीजिएगा. तो अब से पहले मीडिएशन कैसे होता था? तो साहब मीडिएशन होता था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 के चैप्टर 3 के कुछ छोटे मोटे सब क्लॉज हैं जिनको यूज करके
मीडिएशन किया जाता था, बट उसमें भी एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया है कि कैसे किया जाएगा, व्हाट वुड बी द प्रोसीजर, what would be the manner in which the mediator would be appointed, mediator would be removed, mediator would be terminated, or how the award or the settlement will be enforced. So all of these things were not provided anywhere. It was not codified. जैसे अभी IPC की बात करेंगे हम, if we talk Indian Penal Code, or for the fact BNS, BNSSA, Consumer Protection Act, all of these are codified. इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है which has been left for wider interpretation. आप में से मेरे कई सारे दोस्तों ने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा होगा. टॉर्ट्स कोडिफाइड नहीं है. टॉर्ट्स इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ offenses or principle of damages are recognized and identified. They have not been codified because it cannot be. It has been left for the wider interpretation of the judicial institutions while adjudicating a matter. वैसे ही अभी तक मीडिएशन पे कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था. तो 2023 में सरकार ने कहा कि नहीं. नाउ I should be thankful to the present government also, the NDA government in center, which has been there for more than 10 years now. Now they have taken remarkable steps in this direction, and they have addressed the core issue of pendency of cases in the courts of India. Now, for most of my friends who might be knowing about it, there's a figure of Ministry of Law and Justice published in public domain that there are more than 5 crore pending cases across all courts of civil jurisdiction across India. Now, this is a very, this is a very cautioning situation, very horrifying. With a country of a population exceeding beyond 140 crores, we have a pendency of cases stretching beyond 5 crores, and these are only matters pertaining to civil disputes, not criminal prosecutions. Now, if this would have been addressed by an already existing mechanism of alternative dispute resolution, the number would have gone far down. But it did not happen because we did not have a framework in place, sadly. But the present government identified the loophole and addressed it in the best sense. Now, there's a draft arbitration bill also in the pipeline at the behest of the government, which is yet to be legislated and passed by the parliament. It has been put in the public domain for obtaining suggestions from the larger crowd, or the affected crowd rather I should say. So basically arbitration में भी एक बहुत बड़ा सुधार आ रहा है और मीडिएशन में सुधार आ चुका है 2023 के इनैक्टमेंट से. रतन प्रिया, I really appreciate if you could mute your mic. So मीडिएशन एक्ट 2023 में इन्होंने इनैक्ट किया. इनैक्ट करने के पीछे इनका इंटेंट क्या था, हम जानना चाहेंगे. कि मैंने अपने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, थोड़ा डोंट माइंड, आई हैव टू रेफर. कोर्ट की आदत है, मुझे मेरी ब्रीफ बनाने की आदत है. तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एग्जाम्स में चीटिंग करता था पर्ची बना के, ऐसा नहीं है. ये मेरी ब्रीफ है. सो बेसिकली इसके पीछे का लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या था. आई हैड टू रीड द पार्लियामेंट, the discussion which was undertaken in the parliament, the legislative intent of the government behind enactment of this particular law. So I had to understand that to explain you. So I could summarize it in 6 points. The legislative intent behind enacting this Mediation Act 2023. Number 1 being to promote institutional mediation. अभी तक मीडिएशन कैसे होती थी? नंबर 1 पहले पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिवली. अभी तक इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन नहीं होता था. अब तक क्या होता था, 2 पक्षों में लड़ाई हुई, कोई सीनियर व्यक्ति आया, वो आया बैठा, बोला अरे आप दोनों लोग बैठिए, हम बात करेंगे आपसे, आपका क्या मामला है. इन्होंने कहा नहीं साहब इन्होंने ये गड़बड़ कर दी. उन्होंने कहा नहीं इन्होंने पैसे नहीं दिए थे. उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जो इन्होंने गड़बड़ की थी वही ठीक कर देते हैं और जो इन्होंने पैसे नहीं दिए थे वही दे देते हैं. उनका मामला सुलझ गया. उनका मामला तो सुलझ गया. कहते यही बात लिखित में कर लेते हैं. So this was the kind of mediation practice which was prevalent in our society. There was no institutional mediation process which was available with us. और या तो आप जा रहे हैं सेक्शन 13 की हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स की एप्लीकेशन दाखिल कर रहे हैं और कोर्ट ने रेफर कर दिया कि गो टू मीडिएशन. Now you go to mediation. Go to mediation, do what? That has not been given anywhere. तो मीडिएटर को समझा दिया गया कि भैया तुम मीडिएटर हो, तुम्हें इन दोनों का मामला सुलझवाना है, जैसे भी सुलझवाओ.
अब उसका तो कोई प्रोसेस प्रिस्क्राइब ही नहीं है, कोई तरीका बताया ही नहीं। तो हम लोगों ने अपना विवेक बुद्धि इस्तेमाल करके जो जैसा मीडिएटर होता था वो मामले को सेटल करने की अब तक कोशिश करता था। इसी का हम if you may allow Sarthak, I'd like to go on to the historical and Vedic aspect of mediation, if I may. Definitely, sir. So, मीडिएशन तो अभी हमें आज बोलते हैं ना, मीडिएशन 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 ऐसा नहीं है। मीडिएशन की टर्मिनोलॉजी तो आज की है, दिस इज अ 21st सेंचुरी टर्मिनोलॉजी, और मॉडर्न हिस्ट्री में ये टर्मिनोलॉजी आई। इससे पहले भी होती थी मध्यस्थता। ये मध्यस्थता कैसे होती थी? वैदिक टाइम्स की बात करते हैं जब हम, तो एक राजा के पास जाने से पहले जब कोई डिस्प्यूट होता था किसी एक टेरिटरी ऑफ अ किंगडम में, तो राजा वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर डिसाइडिंग द मैटर एट द डिस्प्यूट। तो वहां जाने से पहले ये कहा जाता था कि ये तुम लोग दोनों आपस में बैठ लो, क्योंकि ट्रेड तो तब भी होता था, सिल्क रूट था, तमाम चीजें थी, इंटर कॉन्टिनेंट ग्लोबली हम लोग ट्रेड कर रहे थे, हजारों साल पहले की बात। तब भी मैटर डिस्प्यूट एडजुडिकेट होते थे। तो कह रहे राजा साहब के पास जाने से पहले एक बार हम आपस में बैठ लेते हैं। अब आप कहेंगे साहब ये तो आप कैसी बात बता रहे हैं, ये तो कहीं प्रोवाइडेड नहीं है। अगर प्रोवाइडेड होता तो व्हाई वोंट यू फॉलोइंग इट? नो, इट हैज बीन प्रोवाइडेड। It has been provided in Rigved, Atharved, Manusmriti and Narad Smriti. Now in what manner? Now I'll tell you that as well. This is the wider jurisprudence of mediation. If you try to understand, संवाद और समन्वय का कॉन्सेप्ट समझाया गया उन्हीं 4 वेदों में। लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, आई थिंक कोई दिक्कत हो रही होगी तो आई एम सॉरी। तो संवाद और समन्वय की बात की गई कि पहले डायलॉग करेंगे, डायलॉग करके डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, नहीं होगा तो समन्वय बैठाएंगे, मतलब हमें केवल सेटल करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इसके इनफैक्ट अब आप कहेंगे कि साहब ये तो कॉन्सेप्ट है, तो आपने बता दिया कि संवाद बातचीत तो हम अभी भी कर रहे हैं, ये और इंस्टीट्यूशनल कैसे था? तो ये और इंस्टीट्यूशनल था। एक 3 श्रेणियां बनाई थी हमने, कुलनी, श्रेणी और प्लुगा। ये तीनों श्रेणियां थी। जो कुलनी थी वो फैमिली के लिए थी, श्रेणी जो थी वो गिल्ड के लिए थी, और प्लुगा जो थी वो एसोसिएशन के लिए थी। इन लोगों के जब डिस्प्यूट हुआ करते थे तो मनुस्मृति के चैप्टर 8 में संधि का एक प्रिंसिपल समझाया हुआ है। संधि माने पीस ट्रीटी। When we interpret peace treaty in a wider sense, जब आप देखेंगे कि हमारा चाहे शिमला अग्रीमेंट हो, चाहे सारी चीजें हो, ये मीडिएशन हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ग्लोबली। हम कंटेम्परेरी टाइम्स की बात करते हैं तो बार बार ट्रम्प साहब माइक पकड़ के बोलते हैं कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार, मैं मध्यस्थता कर। अभी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने कहा मैं मध्यस्थता कराऊंगा। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, वी डोंट रिक्वायर इट। सो ये कंटेम्परेरी टाइम में जैसे बात हो रही है, वैसे इन संधियों की बात पहले भी हुआ करती थी, क्योंकि पहले भी एक सिस्टमैटिक गवर्नेंस का मॉडल तो एग्जिस्ट करता था। बट ओवर द टाइम्स इन्वेडर्स केम टू इंडिया एंड they ripped off our models, our laws, our principles and everything. अब तो colonial laws से इंडिया बेसिकली गवर्न होता है, और डीकोलोनाइजेशन की बात करते भी हैं बहुत ब्रॉडली। बट एनीवे मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। फिर हम मॉडर्न टाइम्स की जब बात करेंगे, आजादी से पहले की, इनफैक्ट आजादी से अभी कुछ सालों तक बाद भी, ऑल्दो उसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं थी, बट एक इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन का हिस्सा पंचायत और खाप पंचायत भी है। अब आप कह रहे होंगे, आप स्कैंडलाइज मत होइएगा जब मैं कह रहा हूँ खाप पंचायत। आप कहेंगे खाप पंचायत, और सर ये तो ऑनर किलिंग कर दिया करते हैं हरियाणा में। नहीं, वो कुछ नोटोरियस नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो आपने आज तक न्यूज में पढ़े होंगे कि खाप पंचायत में ये हो गया, मार पिटाई हो गई, हत्या हो गई। बट एक विलेज लेवल पे सबसे छोटा जो एमिकेबली मैटर सेटल करने का इंस्टीट्यूशन था वो पंचायत था। पंचायत और खाप पंचायत। खाप पंचायत हरियाणा और राजस्थान के कुछ बेल्ट में बोलते हैं, ब्रॉडली इंटरप्रेटेड एज पंचायत। पंचायत में सरपंच जी बैठते थे, गांव के कुछ सीनियर लोग बैठते थे विद with immense wisdom, and they used to hear out the disputes and suggest ways to amicably settle the matter. अगर पार्टीज मान जाती थी तो मान जाती थी, नहीं तो फिर जैसा आगे होना होता था फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में वैसा होता था। इस बात को हम इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन पहले हम करते थे वैदिक टाइम्स में, ठीक है। उसके बाद बीच में हमसे कहीं ये छूट गया किन्हीं कारणों से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
मॉडर्न टाइम्स में फिर आकर के हमने 2023 में उसको इनैक्ट किया एज अ एक्ट, जहां पर हमने तमाम शायद मेरे हिसाब से 35 या 40 कुछ सेक्शंस हैं, उसमें कुछ 6-7 स्केड्यूल्स हैं, पूरा कोडिफाइड है। नाउ इट इज क्लियर कट। 2-3 चीज छोटी छोटी हैं, उन 1-2 लकूनास को छोड़ करके मैंने वो सजेशन लिखा भी था मिनिस्ट्री को, ऑल्दो इट कुड नॉट बी टेकन अप। सो बेसिकली एक तो प्रमोट इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन, नंबर 2 यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी। नाउ यहां जो लखनऊ में मीडिएशन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि कोयम्बटूर या तिरुवनंतपुरम में सेम तरीके से मीडिएशन हो, तो देयर नीड्स टू बी यूनिफॉर्मिटी। वो एक देश, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान वाली बात है। तो बात यह है कि इट शुड बी यूनिफॉर्म इन नेचर, पूरे इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इट शुड बी गवर्न्ड बाय अ सिंगल प्रोसीजर, अ सिंगल एक्ट। देयर कैन नॉट बी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द सेम लॉ। एक विधान दो, एक संविधान दो विधान, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक तो ये यूनिफॉर्म और क्लैरिटी के लिए, यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पॉइंट पे आ जाते हैं कि मीडिएशन को मेन स्ट्रीम मैकेनिज्म बनाना चाहती थी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का इंटेंशन था बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ दिस मीडिएशन एक्ट, कि लोग तुरंत कोर्ट पहुंच जाते। आज भी मैं आपको बताऊं, एज अ कंट्री India is more committed to the principle of alternative dispute resolution. आप सुनेंगे, आप मूवीज में देखेंगे, for my friends who have been to US and all those developed countries, वहां लोग एक दूसरे को सू करने की धमकी देते हैं। सू means sue in the court of law। और इतनी ज्यादा वहां पर लोग people have become so intolerant कि वो कोर्ट चले जाते हैं। To keep the cohesiveness of the society, जुड़ाव बना रहे सभी के बीच, इसीलिए भी मीडिएशन इंपॉर्टेंट है कि बैठ करके मामलों को बातचीत से सुलझाया जाए। जरूरी नहीं है कि आप साल दर साल अपने जूते घिसेंगे और लाखों खर्च करेंगे महंगे वकीलों पे और दिन रात फोन करके पूछेंगे वकील साहब क्या हुआ मेरे मामले में। ये जरूरी नहीं। मीडिएशन करके यही काम 120 दिन, अब हम इस पे आ रहे हैं कि इस नए एक्ट में ये 120 डेज का एक कैप दिया हुआ है, that a mediation has to be decided in 120 days, extendable by 60 days upon the consent, upon the consent of the parties involved in the mediation. तो अब वो डिसाइड करना ही पड़ेगा। तो अब 120 दिन प्लस 60 दिन जोड़ लीजिए, आप हो गए 180 दिन। अब 180 दिन यानी 6 महीने में आपको ये मीडिएशन डिसाइड करना ही करना है इन अ टाइम बाउंड मैनर। नहीं करेंगे आप, mediation fails automatically. That has also been provided in the act. ऐसा नहीं है कि नहीं कंक्लूड किया आपने तो there could a situation could arise कि अब क्या करें, अब बैठे इंतजार करें जब मीडिएशन खत्म होगा तब। Now, being an advocate, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, कई बार क्लाइंट का मुकदमा कमजोर होता है और मुकदमे को हमें ड्रैग करना होता है। We adopt a strategy to lengthen the case, take more time, क्योंकि पता है अगर ये डिसाइड हो गया तो ये हमारे अगेंस्ट चला जाएगा, तो हम उसे डिसाइड नहीं होने देते, हम उसे लंबा लेके जाते हैं। नाउ दैट्स अ स्ट्रैटेजी ऑफ एन एडवोकेट, बट अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? लिटिगेंट का, एडवोकेट का नहीं। एडवोकेट अपने मेहनताना पा रहा है, अपनी मेहनत पा रहा है, अपनी फीस ले रहा है, अपनी कंसल्टेंसी ले रहा है, उसके पास जैसे 10 मुकदमे और 25 और है। बट लिटिगेंट का अल्टीमेटली बहुत नुकसान हो जाता है। तो अब ये टाइम बाउंड मैनर में डिसाइड होगा। फिर लेजिस्लेटिव इंटेंट का चौथा नंबर था कि इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ मीडिएटेड सेटलमेंट्स। अभी तक मीडिएशन होते थे, मियां बीवी के बीच में लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद क्या हुआ, मीडिएटर बैठा, मीडिएटर ने दोनों पार्टी को समझाया कि नहीं साहब घर गृहस्थी रखो, बिगाड़ो मत, बच्चे हैं तुम्हारे, सारी चीजों पे क्या असर पड़ेगा, और समझा के मीडिएशन करके एक मीडिएशन रिपोर्ट तैयार की, दोनों पार्टीज का उस पर सिग्नेचर लिया और उसने रिपोर्ट लगा दी कोर्ट में। मीडिएशन सक्सेसफुल, मीडिएशन सक्सेसफुल। अब वो रिपोर्ट आती है कोर्ट में। कोर्ट में आने के बाद 1.5 महीने बाद हस्बैंड बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, शी इज अगेन ट्रबलिंग, या वाइफ बोलने लगती है कि नो नो माय हस्बैंड इज अगेन ट्रबलिंग, व्हाट डू वी डू देन? तो देयर वाज नो मैकेनिज्म प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड कि भी मीडिएशन कर लिया है, अभी आगे मीडिएशन के क्या करेंगे।
तो इन्फोर्सेबिलिटी इंश्योर की है कि जो अब मीडिएटेड सेटलमेंट अग्री होगा दोनों पार्टीज के बीच में, उसको इन्फोर्स भी किया जा सकता है। ये एक एडेड चीज आ गई जो कहीं प्रोवाइडेड नहीं थी, कभी नहीं प्रोवाइडेड थी। अब इन्फोर्सेबिलिटी का क्लॉज सीपीसी में दिया हुआ है, ऑर्डर 21 रूल 10 नोट कर लीजिए। आर्बिट्रेशन का अवार्ड होगा, कंसिलिएशन का अवार्ड होगा, या फिर मीडिएशन का सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये तीनों चीज को इन्फोर्स करने के लिए आप सीपीसी के सेक्शन 47 टू बी रेड अलोंग विद ऑर्डर 21 रूल 10 यू विल फाइल अ एग्जीक्यूशन सूट बिफोर अ सिविल कोर्ट कि साहब ये हैज बीन अग्रीड, प्लीज इसका एग्जीक्यूशन करा दीजिए। सो ये मैकेनिज्म हमें मिल गया। ये मैकेनिज्म पहले कहीं प्रोवाइडेड ही नहीं था। अब एग्जीक्यूशन, अब आप कहेंगे सीपीसी तो इतने दिनों से था, क्यों नहीं पहले क्यों नहीं कर लेते थे जब वो रिपोर्ट आ जाती थी? क्योंकि प्रोवाइडेड नहीं था ना, इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सीपीसी तो वहां एप्लीकेबल होगा जहां पर उसका रेटिफिकेशन होगा, जहां उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, जहां उसे अडॉप्ट किया गया होगा। जैसे प्रेजेंट एक्ट में उसे अडॉप्ट किया गया है, उसकी इन्फोर्सेबिलिटी का मैकेनिज्म प्रोवाइड किया हुआ है। सो इन्फोर्सेबिलिटी का एक एस्पेक्ट था। फिर हम आ जाते हैं कि ऑनलाइन मीडिएशन का कोई फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता था कभी भी। अब मान लीजिए अपने भावेश जी हैं, भावेश जी लखनऊ में हैं और मैं हैदराबाद में हूं, हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, फोन पे हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब डिस्प्यूट हो गया है। अब भावेश जी कह रहे हैं लखनऊ आइए और कर लड़ेंगे मुकदमा। मैंने कहा नहीं, हम तो लखनऊ नहीं आ पाएंगे, आप हैदराबाद आ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हैदराबाद भी नहीं आ पाऊंगा तो बहुत मेरी एक्सपेंडिचर हो जाएगा, हर महीने 3 डेटें लगेंगी, कैसे आएंगे जाएंगे, हम अपना सारा काम छोड़ छाड़ के कैसे करेंगे, जो कि एकदम लेजिटिमेट है। तो अब कैसे करेंगे इसको? तो ये भी प्रोवाइडेड है कि ऑनलाइन मोड में एज स्पेसिफाइड एज अडॉप्टेड बाय बोथ द पार्टीज क्या रूल्स होंगे, उसके हिसाब से ऑनलाइन मीडिएशन का भी प्रोविजन दिया हुआ है। सो जब हम इस एक्ट की बात करेंगे तो ये इसके सेलिएंट फीचर का सबसे खास इसेंशियल एलिमेंट है जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऑनलाइन मीडिएशन को रिकॉग्नाइज किया है। बहुत कम एक्ट्स अभी ऐसे हैं जो कि मॉडर्न इंडिया में ऑनलाइन एडजुडिकेशन, ऑनलाइन सेटलमेंट की चीजों को प्रमोट करते हैं। सो इट इज अ वेरी फार साइटेड इनैक्टमेंट, फार साइटेड लेजिस्लेशन, और and this has been done for to stay in alignment with India's international commitments. Now what were those commitments? एक यूएन चार्टर है, सॉरी यूएन चार्टर कह रहा हूं मैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट्स। ये कन्वेंशन है जिसके हम सिग्नेटरी भी हैं। बीइंग अ सिग्नेटरी आज हम ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं। मोदी जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं। कैसे बनिएगा? जब डिस्प्यूट आ जाएगा तो कैसे बनेंगे $5 ट्रिलियन? वो डिस्प्यूट भी अमिकेबली सेटल होना चाहिए बिटवीन द बिजनेसेस। मान लीजिए स्वीडन की कंपनी है, इंडिया से डिस्प्यूट हो जाता है, अभी कैसे इसकी इन्फोर्सेबिलिटी होगी या इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, ये लागू कैसे होगा? तो हमने सिग्नेटरी तो हम बन गए कन्वेंशन के, बट उसके रिगार्ड में हमने क्या स्टेप्स लिए? सो इसको हमने इनैक्ट करके we have taken steps in this regard to ensure that foreign awards or foreign settlement of mediations can be enforced. So ये एक और अच्छा, बहुत ही अच्छा सेलिएंट फीचर है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपकी मीडिएशन एक्ट 2023 में क्या क्या ऐसी चीजें दी हुई हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी टोटली। तो मोस्ट ऑफ, अगर आप पूरा एक्ट देखेंगे तो लगभग उसमें 85 to 90% ऐसी चीजों को लाया गया है पिक्चर में और कंसिडर किया है, कोडिफाई किया है, जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। इनफैक्ट उन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट भी बनाई है, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया करके, जो बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन, इसी चीज के लिए एक बॉडी होगी जो गवर्न करेगी कि मीडिएशन के रूल्स क्या होंगे, मीडिएशन किस तरीके से किया जाएगा, या मीडिएशन की दिशा में हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए विद डेवलपिंग टाइम, कंटेम्परेरी टाइम। तो उसकी उन्होंने एक कंपोजिशन भी रखी है जिसमें उन्होंने एक चेयरमैन रखा है, करेक्टली रिकलेक्ट, 2 फुल टाइम मेंबर हैं और 1 पार्ट टाइम मेंबर है, और शायद 2 या 3 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं। बट
ये सारे लोग जो भी कुछ बनाएंगे, बिफोर पासिंग दैट और बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट और बिफोर सेंडिंग इट आउट, they'll have to obtain due approval from the central government, and then only can they do it, or the relevant state government as the case may be. तो ये सारी चीजों को लेकर के आए। अभी क्या है कि जब पहले मीडिएशन होता था वो बाइंडिंग नहीं था, अब जो मीडिएशन होता है दैट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, मतलब उसे मानना है। अगर आप नहीं मानेंगे, अब आप कहिए कि हो सकता है मीडिएशन गलत हो गया, या जो मीडिएशन आए सेटलमेंट वो गलत हो गया, या बाद में हमें लगता है कि नहीं, हमारी वाइज विजडम कहती है कि नहीं ये गलत हो गया, हम इसे नहीं मानेंगे। व्हाट इज द मैकेनिज्म टू डिफर फ्रॉम इट? तो उसी मीडिएशन एक्ट में ये भी प्रोवाइडेड है कि आप 90 दिन के भीतर इन अ टाइम बाउंड मैनर, देयर इज अ टाइम बाउंड मैनर, हर चीज का लिमिटेशन होता है। कुछ मेरे दोस्तों ने यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह पढ़ा होगा, तो हर चीज में टाइम बाउंड लिमिटेशन होती है कि तब तक आप एक अपील इसमें लाई करती है या रिवीजन लाई करता है, एज द केस में। इन दिस प्रेजेंट केस आप उसको चैलेंज कर सकते हैं बिफोर अ सिविल जज फॉर सेटिंग इट असाइड विद इन 90 days, बट नॉट बियॉन्ड दैट। 90 days के अंदर आपको उसको करना ही करना है। अगर 90 days में नहीं करेंगे, इट लैप्सेस, विल हैव टू बी उसको मानना पड़ेगा, बाइंडिंग है। क्योंकि अगर आप नहीं तब भी मानना चाहते तो उसकी भी रिकोर्सेज है, देन you'll have to move into go to high court approach in under article 227 for setting aside the award and everything। वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी उस तरफ नहीं जाएंगे, we'll stick around with the mediation act only। अब आप कहेंगे कि इस मीडिएशन में हम किस किस तरीके की मीडिएशन कर सकते हैं और किस किस तरीके की मीडिएशन नहीं कर सकते हैं, या सारी मीडिएशन कर सकते हैं क्या साहब? तो ऐसा नहीं है। मोस्टली 70% मीडिएशन हम कर सकते हैं वेयर प्राइवेट पार्टीज आर इन्वॉल्व, वेयर बिजनेस पार्टीज आर इन्वॉल्व और इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। अब आप कहेंगे कि क्या गवर्नमेंट के साथ नहीं कर सकते? जी बिल्कुल नहीं कर सकते, ये उसमें प्रोवाइडेड नहीं है। इसी चीज की बात मैं हाईलाइट भी करना चाहता था कि जब ये दूरदर्शी इनेक्टमेंट मीडिएशन एक्ट का किया गया, इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया कि कितनी सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं जिससे लोग प्रतिदिन जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और शायद उसे वो मीडिएशन में लेकर के जाए तो वो एमिकेबली सेटल हो जाए और उसके लिए डायरेक्टली लिटिगेशन में जाने की जरूरत ना पड़े। बट एनीवे, मे बी गवर्नमेंट आने वाले समय में इसको रिकॉग्नाइज करे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी मीडिएशन किया जा सकता है। एक्सप्लिसिटली कहीं प्रोवाइडेड नहीं है, बट एक्सेप्शन भी नहीं है। बट एक्सेप्शन नहीं होने के कारण और नहीं प्रोवाइडेड होने के कारण मोस्ट केसेस में ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट मीडिएशन नहीं कर पाते हैं। अब जो मैंने आपसे चैलेंज करने की बात कही कि जो मीडिएशन हमें स्वीकार नहीं है उसको हम कैसे चैलेंज करेंगे और किन ग्राउंड्स पे चैलेंज करेंगे, तो उन्होंने 3 ग्राउंड दे दिए। एक तो भाई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अगर फ्रॉड है तो ये एक सबसे बड़ा ग्राउंड है चैलेंज करने का। दूसरा, करप्शन नहीं होना चाहिए, कोई पैसे की लेन देन हुई है, किसी को दबाव में लिया गया है कि साहब आप 2 लाख रुपया ले लीजिए, आप सेटल कर जाइए, तो मान्य नहीं होगा। या तीसरा, मैं सार्थक बन करके सार्थक का मीडिएशन कर दूं, इम्पर्सोनेशन, या अनसाउंड माइंड है, मैं पागल हूं, मैं मीडिएशन करना चाहता हूं, तो ये मान्य नहीं होगा। डोंट गेट ऑफेंडेड, पागल एज इन मेंटली नॉट स्टेबल। तो या तो इम्पर्सोनेशन हो जाए, या फ्रॉड हो जाए, या करप्शन हो जाए, या तो अनसाउंड माइंड हो। तो इन सारी परिस्थितियों में ग्राउंड्स है कि आप उसको चैलेंज करके आगे जा सकते हैं। ऑल्सो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका जो है, जो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, कि मीडिएशन कैन ओनली बी डन इन द डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग ऑफेंसेस और डिस्प्यूट्स ऑफ सिविल नेचर। इट कैनॉट गो बियॉन्ड इट। ना, अब आप पूछेंगे मेरे नए दोस्तों के लिए, जब अभी क्या है, मेरे यहाँ जब कोई नया जूनियर आता है जो मेरा चेंबर ज्वाइन करता है और एज एन एसोसिएट, एज अ जूनियर, तो मेरा एक प्रश्न होता है उससे, व्हाट इज सिविल एंड व्हाट इज क्रिमिनल? बुरा मत मानिएगा, 99% लोग लड़खड़ा जाते हैं ये समझाने में कि सिविल क्या है और क्रिमिनल क्या है। चलती और आम भाषा में, मैं जूरिस्प्रूडेंस के सेंस में तो नहीं कहूंगा, पर चलती और आम भाषा में और स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो एनीथिंग विच इज नॉट क्रिमिनल, मैं कोट कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, आपके काम आएगा। एनीथिंग विच इज नॉट क्रिमिनल इज सिविल। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कह दी आपने, ये तो
मतलब आप कहिए कि यार मैं सार्थक नहीं हूं तो मैं सिद्धार्थ हूं, तो ये ऐसी बात नहीं है। इसको समझने के लिए क्या है कि जितनी भी पीनल प्रोविजंस हैं, जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई करा जा चुका है, दे हैव बीन कोडिफाइड। जो कोडिफाइड नहीं है और आइडेंटिफाइड नहीं है एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज नॉट criminal, it is civil. Anything which has been provided in BNS, BNSS, gangster, NSA, MAGOCA, UAPA, POCSO, domestic violence, ये सब बताया हुआ है कि ये सब क्रिमिनल है, ये ऑफेंसेस हैं, इनके अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट होगी। बट क्या कहीं पे ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी टॉर्ट की बात करी, टॉर्ट कोडिफाइड है क्या दोस्त? टॉर्ट कोडिफाइड नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं। अब आप मान लीजिए मेरे पड़ोसी है और कल से रोज 1000 डेसिबल पे गाना सुनने लगता है, 4 बड़े बड़े स्पीकर लगा के डीजे की तरह न्यूसेंस कर रहा है, बट ये तो कहीं प्रोवाइडेड नहीं है कि वो ऐसा गाना नहीं बजा सकता। इसके लिए एफआईआर तो दर्ज होती नहीं, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए सिविल टॉर्ट होगा, डैमेजेस मांगेंगे हम, न्यूसेंस की डेफिनेशन में कवर होगा ये। तो ये तो कहीं प्रोवाइडेड नहीं है, कहीं कोडिफाइड नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि एनीथिंग विच इज नॉट क्रिमिनल, मतलब जो वहां लिखा हुआ नहीं है वो सब कुछ सिविल है। कोई विद्वान सुनेंगे तो कहेंगे यार तुम बच्चों को गलत बता रहे हो, लेकिन मैं आपको बहुत ही चलती भाषा में बता रहा हूं। इससे ज्यादा सिंपल और इजी करके इस कंसेप्ट को मैं आपको नहीं समझा सकता कि एनीथिंग विच इज नॉट क्रिमिनल इज सिविल। तो जो भी कुछ बीएनएस, बीएनएसएसए, गैंगस्टर और इन सारे कोडिफाइड एक्ट्स में, क्रिमिनल एक्ट्स में प्रोवाइडेड है, वो सारी चीजों के लिए मीडिएशन नहीं करा जा सकता। उनके लिए सिर्फ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का एक प्रोसीजर लेड डाउन है, अर्लियर सीआरपीसी और अब बीएनएसएस के माध्यम से। उसी प्रोसीजर के हिसाब से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई मीडिएशन नहीं करा जा सकता है। उसको छोड़ के सभी चीजों के लिए आप मीडिएशन कर सकते हैं। बाप बेटे का झगड़ा हो जाए तो भी आप मीडिएशन कर सकते हैं किसी चीज को लेकर के, कि पापा आपने कहा था एग्जाम के बाद आप मेरे लिए जो भी सबसे बढ़िया बाइक है, आप लोग जानते होंगे, तो मेरा तो टच छूट गया है सैडली, वो आपने देने का वादा किया था, आपने दिया नहीं है। और अगर आप मेजर है, माइनर भी नहीं होना चाहिए, एक और कंडीशन है मीडिएशन की, आप माइनर नहीं हो सकते, 18 साल से नीचे नहीं हो सकते। तो खैर वो बाइक चलाने की भी कंडीशन है कि आप 18 साल से ऊपर होंगे तभी ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो वो तो पापा नहीं दे रहे हैं 18 साल से पहले, तो ठीक कर रहे हैं, उसके लिए मीडिएशन में नहीं जा सकते। लेकिन अगर 18 साल के बाद पिताजी ने प्रॉमिस किया था कि बढ़िया नंबर ले आओ, फर्स्ट डिवीजन में पास हो, तुम्हारे लिए बाइक ले देंगे, और नहीं ले रहे हैं, तो आप उनके मीडिएशन में जा सकते हैं। ऑल्दो मैं इसको प्रमोट नहीं करता, और दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट। सो दीज वर द एस्पेक्ट्स जो मुझे लगता है कि मीडिएशन में हमें जानने चाहिए। और ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम रिकॉग्नाइज किए बिना मीडिएशन एक्ट की ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। ये वो एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स की बात जब हम करेंगे, इट इज नॉट बेयर रीडिंग ऑफ द सेक्शंस, द कोडिफाइड सेक्शंस प्रोवाइडेड इन द एक्ट. It is always the wider interpretation which stretches beyond the sections. जब आप सेक्शन पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब समझ पाते हैं, that is what matters. तो आज जो मैंने आपसे समझाने की कोशिश करी, देखिए आई एम नॉट मैं लर्नेड डॉक्टर यादव सर जितना तो विद्वान नहीं हूँ, है ना, और आई एम नॉट अ टीचर, बट मुझे अपना मुकदमा, वकील हूँ, मुकदमा रखना आता है अच्छी तरीके से। तो मेरा प्रयास यही था कि मैं आपको सेक्शन नंबर ना बताऊं, पॉइंट आज वो नहीं है, ठीक है। क्या भाषा में कोडिफाइड है वर्बैटिम, वो आप खुद पढ़ लेंगे जाकर के गूगल पे, वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। मुझे लगा कि मुझे उन एस्पेक्ट्स को कवर करने की जरूरत है जो उस एक्ट में प्रोवाइडेड नहीं है, जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स और टेनेट्स हैं जिनके आधार पे हम मीडिएशन की पूरी प्रक्रिया को अंडरटेक करते हैं। और वो प्रिंसिपल्स यही हैं कि मीडिएशन इज इन most easy and the smooth way to settle a dispute between the parties. अब मीडिएटर कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? तो अभी तक जो मीडिएटर अपॉइंट करने का तरीका था वो ये था कि हर मीडिएशन सेंटर अपनी एक छोटी छोटी लिस्ट मेंटेन करता था मीडिएटर्स की, और वो मीडिएटर्स हैंड पिक किए जाते थे। उनका कोई सिलेक्शन प्रोसेस प्रिस्क्राइब नहीं था कहीं भी। हाँ, ऑल्दो इससे पहले एक संस्था है। अब ये संस्था कौन सी संस्था है? इस संस्था का नाम है MCPC,
एमसीपीसी क्या है, वो वाला एमसीपीसी में, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, एमसीपीसी। मैं फिर रिपीट करता हूं, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी। अभी इस कमेटी का क्या काम है? और बोले आपकी कमेटी कहां से आई? आप तो कह रहे हैं कि 2023 से पहले कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो जी हाँ, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, बट ये पिक्चर में आता है 2005 के जजमेंट में, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं साइट कर रहा हूं, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। मैं एक बार रिपीट करता हूं, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। इसमें कहा गया कि ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, पैनल के स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे, कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन कैसे प्रमोट होगा, या इस पूरे मीडिएशन की मैनुअल क्या होगी, इन सारी चीजों के ऊपर एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये कमेटी फॉर्म हुई, अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली। इट इज नॉट अ गवर्नमेंट एंटिटी, it is not a private entity, it is not an international entity, it is a small group, small committee managed by the Supreme Court themselves. ऐसे ही आप देखेंगे एक लीगल सर्विसेज, लीगल अथॉरिटी, लीगल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1987 है, इफ आई एम नॉट मिसिंग आउट, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं शब्द, वो आप देखेंगे वहां पर जब 1987 का एक्ट, तो आप उसमें नोटिस करेंगे एक परमानेंट लोक अदालत और लोक अदालत का प्रोविजन दिया हुआ है, जहां पर हम फ्री लीगल एड की बात करते हैं, प्रो बोनो क्लब है, ये प्रो बोनो की बात करते हैं, तो आप लोग एक्वेंटेड होंगे 1987 के एक्ट से। तो जो सेक्शन 19, 20, 21, 22 लोक अदालत से परमानेंट लोक अदालत तक की बात करता है। अब आप कहेंगे लोक अदालत क्या है? तो लोक अदालत इज कंसिलिएशन। लोक अदालत इज नॉट अ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसका नाम अदालत जरूर होगा, आप कहेंगे कि अदालत तो उर्दू में कोर्ट होती है, कोर्ट नहीं होती अदालत। अदालत एक ऐसी अथॉरिटी होती है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ऑल्सो। लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत आर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स। दे आर कोर्ट ऑफ कंसिलिएशन एंड नॉट कोर्ट ऑफ एडजुडिकेशन। इसके ऊपर जजमेंट भी है, लीडिंग जजमेंट्स हैं, इफ आई करेक्टली रिमेंबर। लोक अदालत का मैं सार्थक आपको बताऊंगा, आई एम मिसिंग आउट ऑन इट। आप लोग देखेंगे कि लिखेंगे भी गूगल पे लीडिंग जजमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत एंड लोक अदालत, तो बता देगा ना। उस जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वाइडर इंटरप्रिटेशन में कोर्ट ने ये कहा है कि दीज आर दी कोर्ट्स ऑफ कंसिलिएशन, दे कैन ओनली फेलिसिटेट अ प्रोसेस where parties come, they meet, they talk, and the conciliator will be advising them on how to amicably settle the matter. If they do not, then ultimately the whole conciliation proceedings, they fail. The eventuality, नहीं करेंगे cooperate, नहीं करेंगे amicably settle, तो fail हो जाएगा। conciliation success तब होगा जब दोनों पार्टीज amicably एक सेटलमेंट पे आएंगी और अग्री करके मैटर को सेटल करेंगे। तो लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत का ये पर्पस था। और बेसिकली कई लोग कंफ्यूज करेंगे कि ये भी तो मीडिएशन जैसा ही है, बट नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी। अब तक तो मीडिएशन रिकॉग्नाइज ही नहीं था 2023 तक। मीडिएशन तो साहब 2023 के बाद रिकॉग्नाइज हुआ है और अभी भी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो पा रहा है। आप जैसे अभी आप बीएनएस का इनैक्टमेंट जब से हुआ है तब से मैं आपको बताऊं, हम तो डेली तमाम हाई कोर्ट में मुकदमे देख रहे हैं, क्वॉश हो जा रहे हैं, स्टे हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि पुलिस वालों को बीएनएस और बीएनएसएस में ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है अभी। दे हैव नॉट अंडरस्टूड द लॉज, देयर डिवाइडर इंटरप्रिटेशन, और वो गलत तरीके से उसकी एप्लीकेबिलिटी लगाते हैं और अल्टीमेटली कोर्ट में आकर के वो मुकदमा कमजोर पड़ जाता है, बिकॉज सही तरीके से उन्होंने अप्लाई नहीं किया। द जुडिशियल माइंड, खैर वो जुडिशियल माइंड लगा भी नहीं सकते हैं, इट्स नॉट देयर जॉब। वैसे ही अभी जब से मीडिएशन एक्ट 2023 आ रहा है, अभी भी स्टेट्स अपने अपने रूल्स बना रहे हैं और अभी ये होने में समय है। इसे ग्राउंड पे उतारते धरातल पे लाते इट विल टेक टाइम, 2-3 साल लगेंगे, थिंग्स विल गेट स्ट्रीमलाइन। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग में
but don't take my word for it. The conciliation was a kind of mediation. Conciliation was a kind of mediation, but not mediation exactly. मीडिएशन में पार्टी खुद बात करती है, कंसिलिएशन में पार्टियों को बात करवाया जाता है. ऑल्दो मीडिएशन में भी मीडिएटर होता है, कंसिलिएशन में भी कंसिलेटर होता है, बट a person driving a settlement and a person monitoring the settlement are two different aspects. Now we must acknowledge it. अब आप कहेंगे इतना हौच पौच क्यों कर दिया है, तो अब उसके लिए किसी और दिन सार्थक मुझे समय देंगे तो मैं और बृहद रूप से इसको समझा पाऊंगा. मुझे लगता है कि जो एस्पेक्ट्स सार्थक, मुझे लगता है कि जो एस्पेक्ट्स मुझे कवर करने थे मोस्टली मैंने कवर कर लिए हैं. And I don't think there's anything which is left out from my end. It was a wonderful session. I enjoyed talking to you all. जब मैं आपको कुछ बताता हूँ, देखिए मैंने कहा ना, मैं अपना अध्ययन ऑलरेडी करके आया हूँ. ये देखिए, आपको पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ा. तो पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू. कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मुझसे भी छूट गई होंगी, आज मेरी भी वो क्लियर. ठीक है. और इतने विद्वान लोग हैं, आप सब लोग सारे स्टूडेंट्स इस बारे में, इसको मैं जानता हूं कि मुझसे ज्यादा दक्ष, मुझसे ज्यादा बेहतर है हर तरीके से, और अपॉर्चुनिटी आएगी. ऑल ऑफ यू विल मेक अ गुड नेम फॉर योरसेल्फ, सारे के सारे, ऑल दोज ब्राइट लीगल माइंड्स. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल. थैंक यू फॉर पेशेंटली अटेंडिंग द होल सेशन, बीइंग देयर, एंड मेरी बोरिंग बातें सुनने के लिए. वो एक भाई तो सो भी रहा था, उसको जमाई आ रही थी, तो केएल क्लासेस, बट उस भाई को कहना थैंक यू फॉर हियरिंग मी आउट. एंड डॉक्टर आलोक यादव साहब, आपको भी बहुत बहुत विनम्र धन्यवाद. एससीसी टाइम्स को धन्यवाद. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, आपके पार्टनर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद. पूरे प्रो बोलो क्लब को शुभकामनाएं, बधाई कि आप ऐसे कंस्ट्रक्टिव और एकेडमिक सेशंस को अंडरटेक कर रहे हैं. करते रहिए. हमसे जो योगदान बने, जिसकी तरीके से बने, प्लीज ऑलवेज लेट अस नो, वी आर एट योर डिस्पोजल. सिंस दिस क्लब बिलोंग्स टू माय अल्मा मैटर, इससे ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण और जरूरी कुछ नहीं. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you so much, sir. That was really an enlightening session. We have witnessed how the Mediation Act 2023 is shaping the future of justice delivery and strengthening the role of mediation as a powerful tool of dispute resolution. The insights shared today have not only broadened our understanding, but also inspired us to view mediation as a path towards accessible, efficient, and harmonious justice. So now, before we formally conclude, I request our student coordinator, Mr. Aditya Sodhi sir, to convey the vote of thanks. Before that, first of all, thank you so much, Sarthak. Before that, I can see some questions on the chat box. I would like to request Mr. Siddharth sir, if he have the time or do not, there is no constraint. We can take it up. It's on sir's assent only. I'm always happy to interact with all of my friends. I can keep it quick if there are really 2-3 important questions which I might not have addressed. I'm ready to do that. But don't stretch it for more than 5-10 minutes. I have to rush somewhere. I hope you understand. Yeah, definitely, sir. There is one question I can see in the chat box that who can open a mediation center under the Mediation Act 2023? Not a private entity. Now, this entity has to be established by the rules as prescribed by the central government or the state government as the situation requires. And it can be established at the level of civil court, high court, and a Supreme Court as well, or any court for that matter. But it has to be established by a notification of the central government or the state government. It cannot be private. Although arbitrations can be. Okay. If there's any other questions from the participants, members, associates of the club, you may raise your hand and ask it. Beat very quickly. Like, yes, Sarthak, go on. Bataiye. Sir, recently there was a dispute named Europratik versus Geoman Industries,
which was referred for mediation, and the mediator was the former Chief Justice of India, Dr. D.Y. Chandrachud. So, in purview of that, do you actually believe that there is actual scope for newcomers in this mediation section? Because ultimately, the high-profile cases are being given to the already existing judges and all. Thank you, Sarthak. That's a very relevant question. Now, we must understand when we talk about conciliators, arbitrators, and mediators. Now, all these folks, they come with a good amount of experience and knowledge, now, which cannot be gained after passing out from a particular college or, reading 2-3 books or a stack of books and you start calling yourself a mediator. No, you cannot. There has to be a certain standard which needs to be suited or which needs to be addressed to assume such position, which comes with time, which comes with profiling, which comes with an immense amount of experience. तो जब हम मीडिएटर, आर्बिट्रेटर और कंसिलिएटर को अपॉइंट करने की बात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति हो who has immense exposure and immense knowledge in a particular field, and accordingly लिस्ट बनाई जाती है आर्बिट्रेटर्स की भी, मीडिएटर्स की भी, और उन्हें अपॉइंट किया जाता है. जैसे कंसिलिएटर्स होते हैं परमानेंट लोक अदालत और लोक अदालत में, दे आर रिटायर्ड जजेस ऑफ हायर जुडिशियल सर्विसेज और पीसीएसजे, उसके रिटायर्ड होते हैं. आर्बिट्रेशन होता है, जैसे मैक्सिमम आर्बिट्रेशन आर बीइंग अंडरटेकन बाय द रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस. तो you need to have people who have the knowledge and expertise to adjudicate the matter in the cases of arbitration and to amicably advise and get the matter or dispute settled in a mediation or conciliation. वो एक नया आदमी नहीं कर सकता. However, the more convincing, मैं भी नहीं कर सकता हूँ for that matter. तो जब हम मीडिएटर की बात करेंगे सार्थक, हमें ये समझना होगा कि आप मीडिएटर नहीं बन सकते हो. ऑब्वियसली ये ओपन रहता है कि जब आपका क्लाइंट मीडिएशन में जाए तो एन एडवोकेट कैन अकम्पनी, वहां पर वकालतनामा फाइल नहीं होगा. जैसे आर्बिट्रेशन में वकालतनामा फाइल होता है, यहाँ पर कोई वकालतनामा फाइल नहीं होगा. यहाँ आप अकम्पनी कर सकते हैं, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, बट आप मीडिएशन नहीं करेंगे, मीडिएशन पार्टी खुद करेगी. तो वहां एडवोकेट का रोल डिसाइड हो सकता है एज एन प्रोफेशनल, बट एडवोकेट का रोल एज अ मीडिएटर assume करने के लिए there are a lot number of checklist boxes which needs to have the tick marks to become a mediator. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay, Vishwendra, move. बताइए भाई. Good evening, sir. Sir, as you see and deal different cases related to disputes on ground level in courts, sir, whether do you see this tool of mediation have proved successful in resolving the disputes or making party to reach, you can say, amicable settlements in current scenario, sir? बिल्कुल विश्वेंद्र, मैं आपको बताऊं कि the society has sustained all these centuries and thousands of years only because of this mechanism. अगर कोर्ट जाकर के लड़ाई करी होती तो ये समाज की बुनियाद हिल जाती. आप इसको इस तरीके से समझिए. मैंने कहा ना, आप इसकी ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन करिए. मीडिएशन को मीडिएशन जितना मत समझिए. मीडिएशन हमारे घर में होता है. जब भाई बहन की लड़ाई होती है तो मम्मी मीडिएशन करती है, ये तुम चुप रहो, हो गया मीडिएशन. मीडिएशन एक बहुत बड़ी बुनियाद है जिसमें हमारा समाज टिका हुआ है. तो मतलब इसको तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते इस फैक्ट को कि मीडिएशन कैन नॉट बी अ प्रूवन टूल टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. This is undebatable. Yes, sir. But as in court scenarios, if we ask whether in courtroom or means outside the courtroom, whether this will have proven successful in resolving the disputes or not, sir? Yes, it has been proven successful. That's why society has sustained for so long. But if it wouldn't have succeeded, तो exist ही क्यों करता? Yes. जो आप ऐसी जितनी भी डीवियस प्रैक्टिसेस थी, जैसे अनटचेबिलिटी फॉर एग्जांपल, सती प्रथा, जो गलत था वो तो खत्म ही कर दिया गया. आप देखेंगे अभी बीएनएस में सिडिशन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है. ठीक है, सेक्शन 377 को सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया. तो जो सर्वमान्य नहीं है वो तो नहीं है, बिकॉज इट इज डैमेजिंग द सोसाइटी. तो इट हैज सक्सीडेड ओवर इयर्स टू बिकम अ लॉ नाउ. So we must appreciate this thing. So it is successful. It is successful in most of the cases. Pre-litigation mediation. और अगर mediation नहीं होता तो आप litigation में जाइए, फिर तो you are always open to do that.
Thank you, sir. Thank you so much, sir. Uh, Learned speaker for today's session, Mr. Siddharth Shankar Dubey, sir. Our faculty in charge, Professor Dr. Alok Kumar Yadav, sir. Uh, Past student coordinators, participants, associates, and my dear friends and colleagues. Uh, Today's lecture was not just an academic exercise, it highlighted how legislature process can strengthen access to justice. Uh, as Sir already mentioned earlier in the session, that mediation in India is not new. The historical use of the mediation through panchayats for community conflict resolution is well known and still prevalent and preferred. However, I'll not take another session as I was requested to deliver a vote of thanks. So first of all, we must pause to acknowledge both the houses of our parliament, our president, whose vision and commitment brought a statute on mediation into existence. And particular to today's session, I extend my heartfelt gratitude to Mr. Siddharth Shankar Dubey, sir, for sharing with us not only the provisions of the act, but also its spirit, the belief that conflicts can be resolved with dialogues, understanding, and compassion. I'm equally thankful to our faculty in charge, Professor Dr. Alok Kumar Yadav, sir, who is always cooperative, open to new ideas, and remains the strength behind all our initiatives. He is the most Uh, wonderful professor I've come across in your faculty. I'm telling you, sir is so approachable. Sir is always, he's always ears to the students, and he considers all the suggestions and everything in good spirit. So this is what the feedback I have got from students. So congratulations from my side as well to Dr. Yadav. Thank you so much, sir. Adding to that, sir is the reason why young students like me can translate our learning into meaningful service. Special word of appreciation is owed to my colleague, Mr. Bhavesh, co-convener of the club, for who he shouldered the responsibility of this lecture series from the very beginning. And last but the most important to the fellow members and associates of the club, to be really honest, your participation and tireless contribution give life to every event we host. I feel genuinely proud to be leading such a dynamic and passionate team. As I close, to everyone who joined us today or is watching it later, as we'll upload the session on YouTube also. Let me leave you with this assurance that we'll back with another guest, another topic, another conversation. Till then, you can follow us on our Instagram or other social medias. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much joining everyone. You all will get your certificates to mailed within a week. Thank you. Thank you, sir, for joining. Thank you, Alok, sir, Siddharth, sir. My pleasure. Thank you. Thank you. I can leave? Yeah. So the session is over. All the participants and the speaker can leave. We'll upload the session on YouTube also. You may watch it anytime. You can follow our YouTube channel also. Sir is the founding advisor of the Adhyan Foundation. Also, you may go visit that also. And yeah. I'll surely watch myself on YouTube and see that. I hope I'm not looking fat. Although No, sir, I've put on a lot definitely of not, weight, sir. but I'll be body conscious. I'll look myself, on YouTube shortly. Thank you all. Thank you so much, sir. Thank you so much.